Dear students, we are continuing our series with hyperconjugation and conjugation of organic compounds. Hyperconjugation and conjugation. Hyperconjugation Suppose we have a compound CH3 CH double bond CH2. There are two possibilities. Either pi electron shift to this and this becomes plus, or it can come like this. Either pi electrons can migrate to this side and you will get negative and positive, or pi electrons will get migrated to this side, you will get minus and plus. Carbocation, 1 degree carbocation, more stable, less stable. Major, intermediate, minor intermediate. What is observed that this is single bond and this is also single. What happens is that this CA and CB, CA and CB CA and CB, negative and positive, Ca negative and Ca positive, have negative and positive have found to be double bond length in between C single bond C and C double bond C. सी ए और सी बी के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमें लग तो सिंगल रही है, बट इट इज फाउंड टू बी दिस. So what happens exactly was, what was observed later on, again understand, pi electron can migrate to this or pi electron can migrate to this. If pi electron get migrated to this, it will be A structure. If pi electron get migrated to this, it will be B structure. This is secondary carbocation, more stable. This is primary carbocation, less stable. This is major. Now if we see hypothetically it is single bond, but when it was observed that the experimentally bond length between C single bond C and C double bond C, how does it occur? For that, number C, also the bond length of
Ca and Cd bond is intermediate between C. How it is possible? How it is possible? That is the point. It was found that one of the hydrogen it was found that one of the hydrogens give its electron to its vacant orbital because it is plus and forms a double bond. But this H plus, ये वाला जो H प्लस यहाँ बना है, ये H ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, C डबल बॉन्ड C हो गया, does not migrate, does not migrate. Does not migrate. H plus remains over here. H plus does not migrate. Now what happens that this H takes its electron back and this H gives its electron. So another structure is created. That is this. Now this H also does not migrate. Now this H takes its electron back and this H gives electron. So what will be the next structure? Next structure will be H plus C H this is this structure. Hydrogen of adjacent carbon of C plus gives CH of adjacent carbon gives 2 electrons into vacant orbital of C plus. ये जो C प्लस का वेकेंट ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिए, H प्लस बन गया, लेकिन H प्लस यहाँ से माइग्रेट नहीं करा. अगर माइग्रेट कर जाता तो स्ट्रक्चर परमानेंट हो जाता. अब इस H ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इस H ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब इस H ने दिए, अब ये वापस आ जाएंगे तो ये H ने इलेक्ट्रॉन ले लिए. तो आपके पास ये चलता रहेगा. इट्स ए नॉन स्टॉप प्रोसेस. दिस what is hyperconjugation then? What is hyperconjugation then? Migration of what is hyperconjugation? Is migration of CH sigma electrons of CH bond into unhybridized orbital
C प्लस। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये माइग्रेट कर गए, किस में कर गए? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, C प्लस, टू फॉर्म पाई बॉन्ड। अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से जो आए, ये तो सिग्मा बॉन्ड था, और जो यहां बॉन्ड बना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहां आए, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, इस C और इस C के बीच में जो बॉन्ड बना बेटे, वो बॉन्ड कौन सा था? पाई। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है सिग्मा पाई रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है सिग्मा पाई रेजोनेंस। सिग्मा क्या? सिग्मा के दो इलेक्ट्रॉन टूटे, H प्लस बन गया, और इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट कर गया और इन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया, सिग्मा पाई रेजोनेंस। सो हमारे पास मान लीजिए कि कार्बोकेटाइन है, इसके साथ 3 H है, हर कार्बन के साथ 3 H, और ये प्लस होते ही क्या बन जाता है? एक वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहां पर हमारे पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आएंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। इनमें से कोई भी H, कोई भी CH अपने दो इलेक्ट्रॉनों को माइग्रेट कर देगा, एनी CH, और आपको क्या मिल जाएगा? 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आ गए आपके पास। टर्शरी कार्बोकेटाइन का स्टेबल होना, स्टेबिलिटी is also a part of hyperconjugation, part of hyperconjugation। C प्लस की स्टेबिलिटी आना टर्शरी कार्बोकेटाइन की, ये भी एक हाइपर कॉन्जुगेशन। वैसे तो 3+I है ही, 3+I इफेक्ट तो है ही, लेकिन जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है, अब जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है उनको ध्यान से देखिए। अगर पाई बॉन्डेड सिस्टम है, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपसे डिस्कस किया जा रहा है, देखिए बेटा, अगर हमारे पास CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है इसकी। एक पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और हमें क्या मिल गया? CH3 CH3 CH माइनस CH3 और ये आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पाई यहाँ चले गए, ये वाला बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन। पाई बॉन्डेड सिस्टम में, पाई बॉन्डेड सिस्टम में हाइपर कॉन्जुगेशन is more predominant, more significant
एक बार दोबारा देख लीजिए, CH3, CH3, ये वाला सिस्टम था हमारे पास। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई थी, मैंने ऊपर दिखा दिया आपको। लेकिन इस प्लस के कार्बोकेटाइन में, वेकेंट ऑर्बिटल में 6 हाइड्रोजन अपने दे सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 हाइड्रोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन ऑफ C+। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं जो इसको दे सकते हैं? 3 और 3 6। दोबारा देख लीजिए, 3 और 3 6, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है इसका, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ C+। दोबारा देख लीजिए, इस C+ के पास 3 हाइड्रोजन यहाँ से 3 यहाँ, और यहाँ पर इस C+ के साथ 3 CH बॉन्ड, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। और हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर हम प्लस का इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। प्लस का इफेक्ट को हम सिंगल बॉन्ड वाले सिस्टम में कंसीडर करते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले में। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर मेरे पास CH3 से CH3, तो ये बात किसको समझ आ गई? पाई इलेक्ट्रॉन कैन माइग्रेट टू एनी कार्बन, दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम है, देयरफॉर टोटल यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, विच कैन कंट्रीब्यूट 3 और 3 6 इसको, अगर यहाँ प्लस है, 3 और 3 6 इसको अगर यहाँ प्लस है, तो टोटल 12 हाइड्रोजन कैन कंट्रीब्यूट टू 12 हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और जिस कार्बन पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, CH3 ध्यान से देखिए, ध्यान से, इनमें से कौन सी एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी? जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन का यहाँ 0 स्ट्रक्चर, 0 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर सिर्फ 3 हाइड्रोजन हैं जो इसके प्लस बनने पर इसको कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ ये दोनों तरफ एक जैसा है, तो इधर से भी 3 आ सकती हैं अगर ये प्लस बनता है, और अगर ये माइनस बनता है, या ये प्लस और ये माइनस बनता है, तब भी 3 आएंगे। तो टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर अगर हम चलें तो इस अकेले कार्बन को 6 हाइड्रोजन प्लस इसको 3, तो टोटल हमारे पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर।
और यहाँ पर सब तरफ से चारों कार्बन के 3-3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इस एल्कीन को हम क्या कहेंगे? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इट इज नोन एज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब आप एक एच हटा के एल्काइल चेन लगा दो। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन लगा दो, एक सब्स्टिट्यूशन। 2 हाइड्रोजन हटा के 2 कार्बन लगा दो, ये। और इससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सबसे हर जगह कोई हाइड्रोजन ही नहीं है डबल बॉन्ड पे, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा आएंगे। इस अकेले कार्बन के प्लस होने पर 3 और 3 6, और इस कार्बन के प्लस होने पर 3 और 3 6, 6 स्ट्रक्चर यहाँ बन सकते हैं, 6 यहाँ बन सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वी विल हैव 12 हाइपर टोटल पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इसलिए ये स्ट्रक्चर ये एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एल्कीन का तो एक कॉन्सेप्ट आता है ना, देखो ध्यान से आपको बताएं। एल्कीन का एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है वो ज़रा ध्यान से देखिए, कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोस्ट substituted alkene is most stable. Most substituted alkene is most stable. क्यों कहा जाता है, वो आपको समझ आया? because it can have maximum hyperconjugation structures, जैसे कि यहां देखा गया। और मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या है? दैट इज कार्बन विद डबल बॉन्ड has minimum hydrogen, maximum carbon. तो हमारे पास जिस एल्कीन में सबसे ज़्यादा कार्बन चेन होगी हाइड्रोजन की बजाय, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होती है, क्योंकि उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या है? सिग्मा पाई रेजोनेंस। और इसका तीसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि जब हमने CH के 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किए थे, तो माइग्रेट करने पर H प्लस थोड़ी देर के लिए बिना बॉन्ड के ही पड़ा रहता है वहाँ। H प्लस थोड़ी देर के लिए बिना बॉन्ड के ही पड़ा रहता है वहाँ, पाइको सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए। और हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही। तो अब हमारे पास एक कंपैरिजन आ गया। एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। C डबल बॉन्ड C, H CH3 CH2 CH3 प्लस 2 माइनस, प्लस का मतलब एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का खाली हो गया, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये 3 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकती हैं। ये आपके लिए एक दोबारा रिवीजन हो गया। 3 हाइड्रोजन जैसे इसने दिया, ये प्लस है बेटा, ये माइनस है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, वो कहाँ चले गए? इसके अंदर। 3 स्ट्रक्चर हो गए ना ऐसे हमारे पास।